Hello and welcome back, dear students, in my channel Simplified Maths. Hope you all are fine. Today, in this particular lecture, we are continuing with chapter 11, Conics, okay, part 7. Okay, in the last lecture, I think we have completed the exercise 11.2, right? And now we are going further for the next conic section, okay? And that net conic section is ellipse, okay? Now today we are going to define and get the general equation or a standard equation of ellipse, right? So ellipse definition is not there, but standard equation is there. So ellipse standard equation is given in two ways, means there are two types. There are two types of the ellipse are there. The first type is, okay, the first type is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This is the first type of the ellipse given where a is greater than b. ये भी बहुत important चीज़ है. A is greater than b, right? Now in this what type of diagram will be? Just see, okay? The diagram will be given like this of this ellipse. You know the elliptical uh, shape. You know our earth rotates in the not the circular but earth also rotates in the elliptical shape, elliptical path. It goes like this, okay? This way it will be elliptical, in which we have x-axis, y-axis and focus, directrix, everything, okay? So now these are the axes I have drawn, okay? X-axis, y-axis, this will be the center of the ellipse, okay? Is these coordinates, they denoted by a b c d, so I go for the textbook notation a b c d, okay? And here which is the larger one? A is greater than b, okay? So a is more than b, so इसमें ab line segment or cd line segment, from these two which is larger? AB is larger, so the larger one number a will be taken here. It will be a0, okay, on x-axis, no? So y coordinate 0, so this will be minus a0. C will be, this will be 0b, okay? B is smaller, so see CD is a smaller one, वहाँ पे मैंने b लिया, and this side it is 0 minus b, okay? Now there are, in this ellipse, the number of focus, there are two focus. There are two focus. How many? Two, okay? In the parabola, there was only one focus. Now we have two focus, okay? So focus will be given f1 notation, another focus on the left of the origin, same distance, f2 notation, okay? Now what are the coordinates of the focus? If there are more than one focus, it will be known as foci, F-O-C-I, okay? They call it foci, means two focus. Now the coordinates are given in this notation. The focus coordinates are C0 and here it is given minus C0, okay? Now the question arises is, दोस्तों, where is C? इसमें तो कहीं पे there is AB, but what is C? Nothing is given, right? So for that, dear children, all of you have to look in the topic ellipse, okay? Textbook, all of you just if you keep the textbook open, right? And
then you take the page number 247, right? Then the definition of ellipse is given, okay, and then there is an eccentricity is also explained. Eccentricity is explained. If you see there on the page number 248, okay, page number 248, eccentricity definition is given. So eccentricity definition we have already taken earlier, okay, but that definition is little bit different than that what is given in the textbook, okay, right? Actually it's a ratio only, but that ratio given by what notation आप देखो पेज नंबर 204 में 248 पर इम्पोर्टेंट नोट करके, ओके, इसेंट्रिसिटी गिवन, उसको आप ध्यान से देखना मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ फिगर में. इसेंट्रिसिटी ई फॉर्मूला इज गिवन इज सी अपॉन ए, ओके, ये हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है. इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज इन अनदर सेंस आई कैन से दैट सी इज इक्वल टू ए ई. सी इज इक्वल टू व्हाट? ए ई, करेक्ट. बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सी. अब थोड़ा ध्यान से देखना. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ई. इसेंट्रिसिटी क्या है वो थोड़ा ध्यान से देख लेना. तो इन लोगों ने यू लिया हुआ है. इट्स अ रेशियो. कैन यू सी दैट इट्स अ रेशियो? Isn't it? C upon A, so it's a ratio, isn't it? What type of ratio it is? So in fact, if in the figure if you see, okay, in the diagram eccentricity, that is ratio कौन सा है पता है? OF1. Look, what is the distance OF1 दोस्तों? OF1 distance will be C. And what is the distance OB? OB distance कितना होगा? A होगा, because it is A0. Hope you understand this. So what is C upon A means what ratio it is? It is ratio, आप इसमें पढ़ोगे तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर इज O, सेंटर O of the ellipse to one of the foci. One of the foci means either F1 or F2. Okay, to one of the foci and one of the vertices. See, A, B, C, D all are vertices. A, B, C, D. So one of the vertices. Okay, so we'll take on the major axis. See, A, B is the major axis, C, D is the minor axis. Remember this word also. Okay, right? So what is this ratio is? Distance of the center. इस सेंटर से एक तो ये पॉइंट का डिस्टेंस है, वन ऑफ द फोकई मतलब दो फोकस है तो उसमें से किसी एक फोकस के साथ उसका डिस्टेंस, एंड टू वन ऑफ द वर्टाइसिस मतलब आइदर ए और बी. ओके, राइट, टू नो वन ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द इलिप्स, ओके, इज कॉल्ड एन इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी की ऐसी डेफिनेशन दिया हुआ है. एंड फ्रॉम दैट eccentricity, okay, I have taken this cross multiplication. C is equal to AE. So what is E in the diagram? In the diagram it is OF1 upon OB. In the above figure में ये दिया हुआ है. And you just have to see textbook definition. आप थोड़ा इसको देख लेना. Definition given on page number 248. ये आप एक बार देख लेना, then you will be getting idea that what is eccentricity is. तो उन लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से eccentricity को एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है दोस्तों, राइट. एंड thus if C is equal to AE, अगर C is equal to AE है, then focus are given as C0 and minus C0. Then what will be the focus? Then you can say that the foci are
ओके, क्या लेंगे हम फोकाई, प्लस और माइनस ए ई ज़ीरो. In fact, their focus given is C0 minus C0 means प्लस और माइनस C0. तो उसके बदले मैंने क्या ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, प्लस और माइनस ए ई ज़ीरो. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, तो फोकस की ये हमारी एक्चुअली फॉर्मूला ये हो गई. राइट नाउ, हाउ टू फाइंड इसेंट्रिसिटी. तो ये हमको, सपोज इसको मैं नोट नंबर 1 लिखता हूँ. लेट अस से दिस इज द नोट नंबर 1. ओके, अभी एक और पेज नंबर 249 आप देखोगे दोस्तों टेक्स्ट बुक में. ठीक है, तो वहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है 11.26 फिगर जो है, उसमें उन लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको कुछ एक्सप्लेन किया हुआ होगा. तो एक्चुअल में वो सब डिटेल में हम नहीं जाएंगे. वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी अदर डिटेल, बट आई विल गिव यू द टू मेथड्स टू फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए अब प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि E इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब एक्चुअली आप देखो ना तो यहाँ पे कहीं पे भी C फाइंड करने की फॉर्मूला है ही नहीं. यहाँ पे भी C0 लिखा हुआ है. C इज इक्वल टू ए ई लिखा हुआ है यहाँ पे. कैन यू सी दैट, कैन यू सी दिस, C इज इक्वल टू ए ई. बट उसमें भी E इज अननोन, इसेंट्रिसिटी भी हमको नहीं पता है. ओके राइट, तो ये यूज़ कैसे करें, हाउ वी विल गेट C, हाउ वी विल गेट E, इसेंट्रिसिटी कैसे ढूंढेंगे. तो उसके लिए सेकंड नोट में दे रहा हूँ. ओके, नोट नंबर 2 कि टू फाइंड इसेंट्रिसिटी, टू फाइंड E फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे. देर आर टू वेज. द फर्स्ट वे इज, ओके, यूज टेक्स्ट. अभी आई एम यूजिंग द टेक्स्ट बुक मेथड. यूज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. वो है ना टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, पाइथागोरस की यूज से ये आया हुआ है. सो यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये रिलेशन आप यूज करो. ओके, एंड यू गेट फाइंड आउट सी. इसमें से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी. ठीक है ना. ओके, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ सी, देन okay, then by using which formula, that C is equal to A by E. ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो उसमें एक पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यूज़ करके आपको C मिल जाएगा. C यहाँ पे रिप्लेस करोगे, A ऑलरेडी वी आर गिवन, सो यू विल गेट E. वी गेट वैल्यू ऑफ E. Okay, clear this, right? Now second method, there is a second method too. Okay, second method is I am taking from the old textbook, from old textbook. Okay, the method given is, you can use, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला से क्या एडवांटेज होने वाला है दोस्तों, हाँ, इससे आपको डायरेक्टली कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, सीधी इसेंट्रिसिटी मिलेगी. देखो ये मेथड 1 से पहले क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू यूज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. उसमें से आपको C मिलेगा. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ C, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, C इज इक्वल टू ए बाई ई. ओके, और उसमें से आपको इसेंट्रिसिटी मिलेगी. सो देर आर टू स्टेप्स. इफ यू यूज दिस, देर इज ओनली वन स्टेप. सो दिस इज फ्रॉम द ओल्ड टेक्स्ट बुक, एट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड वील गेट डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी. टू गेट directly, okay,
the answer of E. Okay, is that clear? Hope you understand both the method. Clear? अच्छा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा कि सपोज मुझे ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देखो व्हाट इज़ ए इज इक्वल टू 4, व्हाट इज़ बी इज इक्वल टू 3। तो देखो ए इज़ ग्रेटर देन बी हो गया। अब यहाँ पे डालोगे वैल्यू ए और बी की वैल्यू, सीधी इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो, ये टेक्स्ट बुक की मेथड है एनसीईआरटी, तो पहले आपको ए बी यहाँ पे रिप्लेस करोगे, यू विल गेट सी। ठीक है, आंसर वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ सी, देन सी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे एंड देन यू विल गेट ई, इसेंट्रिसिटी बाद में मिलेगा। ठीक है ना? होप यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग, राइट। अभी इसेंट्रिसिटी के बाद इसमें और एक चीज़ बाकी रह गई है पीछे डायग्राम में दोस्तों, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, शायद टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ है, बट वो तो कंपलसरी है। ओके, कि डायरेक्ट्रिक्स, ये एक डायरेक्ट्रिक्स, इसमें डायरेक्ट्रिक्स भी दो होती है, ये एक और ये दूसरी। ओके, डायरेक्ट्रिक्स। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दोस्तों, राइट। एंड देर आर टू डायरेक्ट्रिक्स, टू फोकस, ये याद में रखना है। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो ये रहता है x इज इक्वल टू ए बाई ई, और इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ओके, so both of these are the equation of डायरेक्ट्रिक्स। सो दो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, दो फोकस हो गए। ओके, ठीक है ना, राइट। एंड और क्या पढ़े हम, इसेंट्रिसिटी फाइंड करने की फॉर्मूला, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब हो गया। अभी व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट अबाउट द सिमेट्रिसिटी। हाँ, अगर इसको सिमेट्रिसिटी के बारे में बात करें तो यू कैन सी दैट ellipse will be symmetric about both the axes. Ellipse will be symmetric about both the axes, दोनों एक्सिस। और दूसरा एक और चीज़ इसमें अभी ऑब्टेन करना बाकी है, और वो है लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम याद है ना, पैराबोला में ये हमने सपोज ऐसे ड्रॉ किया मैंने, तो लैटस रेक्टम भी दो बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, राइट। तो लैटस रेक्टम में भी दोनों साइड लेंथ तो सेम ही होगी। अभी ए बी सी डी सब यूज़ हो गया है, तो यू कैन यूज़ पी क्यू और एनी अदर नोटेशन, और एल एल डैश कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी दिया हुआ है, जिसका भी हमको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। सो इम्पोर्टेंट नोट में नोट नंबर 1 आ गई, उसके बाद ये नोट नंबर 2 आ गई, राइट। उसके बाद नोट नंबर 3। अभी थर्ड नोट में ले लेंगे हम इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, बरोबर, सॉरी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ, ओके, लैटस रेक्टम। और उसको नोटेशन जो भी है उसकी फॉर्मूला होगी 2b² अपॉन ए, ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। ओके, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 2b² अपॉन ए। एंड ऑल्सो एक बात ये याद रखेंगे दैट इलिप्स, ओके, इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, अबाउट बोथ द एक्सिस। ओके, ये भी याद रखना होगा, सिमेट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग दोस्तों, बराबर। एनी डाउट? अच्छा, व्हाट विल बी द मेजर एक्सिस लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो वो होती है 2b।
वो कैसे मेजर माइनर वर्ड कैसे यूज़ किया हुआ है? ऑब्वियसली सी, ये ए बी इज मेजर, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर, यू कैन सी दैट मेजर माइनर. ओके, क्लियर, राइट. अभी सेकंड टाइप ऑफ द इलिप्स, ओके, टाइप 2 इलिप्स. अब इलिप्स जो टाइप 2 जो है वो क्या है? तो अब उसमें इक्वेशन आप देखोगे ना, तो इक्वेशन यूँ दिया होगा, ध्यान से आप देखोगे टेक्स्ट बुक में, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल टू 1. नाउ ऑब्जर्व, सी इन द टेक्स्ट बुक, पहले में क्या था, दूसरे में क्या आया? पहले में क्या था दोस्तों? यहाँ पर ए स्क्वेयर था, यहाँ पर बी स्क्वेयर था. वो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इंटरचेंज हो गया, बट अल्टीमेटली ये याद रखता है कि ए ग्रेटर देन बी तो है ही. लेकिन अब क्या हो गया कि जो लार्जर नंबर है वो वाई स्क्वेयर के अपॉन में चला गया. द स्मॉलर नंबर इज अंडर, मीन्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वेयर. तो इन दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ओके, द डायग्राम विल बी लाइक दिस. डायग्राम जो है ना दोस्तों, वो इलिप्स जो था वो इलिप्स पूरा यूं बन जाएगा ऐसे, ठीक है. वो इलिप्स जो था, जैसे उसको एक शेप लगा दो तो वो एक ऐसे पड़ा था तो एक को उसको यूं खड़ा कर दिया ऐसे, बराबर. ओके, तो ये हो गया इलिप्स का सेकंड टाइप, ठीक है. अभी इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो सब तो होगा ही. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है पता है, कि यूं आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल. उसमें क्या था, डायरेक्ट्रिक्स जो थी वो वर्टिकल थी, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल आएगी. अब यहाँ पर जो स्मॉलर वाला, ये जो लार्जर है, लार्जर तो ए ही है. तो अभी क्या होगा कि सपोज मैंने इसको ए बी लिखा, तो याद क्या रखना होगा कि दिस विल बी बी ज़ीरो, दिस विल बी माइनस बी ज़ीरो, दिस विल बी सी ज़ीरो ए एंड दिस इज डी ज़ीरो माइनस ए. तो इसमें देखो मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के बदले मेजर एक्सिस कौन सी बन गई, वाई एक्सिस इज द मेजर एक्सिस. ठीक है, मेजर एक्सिस बन गई वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस पर. यहाँ पर जब हमने वो मेजर एक्सिस लिखा तो यहाँ पर मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, मेजर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस है. ओके, ये एक्स एक्सिस पर है. अब यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर आ जाएगी. ठीक है, वो ध्यान में रखना होगा. बाकी सब सेम रहेगा. आगे की जितनी भी नोटिंग किया है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों. लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा, फोकस एक यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस पे, दूसरा फोकस इधर आ गया. ठीक है, राइट. तो कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे लिखने हो फोकस के, तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 सी और यहाँ पर आएगा 0 माइनस सी. ओके, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आपको लिखनी है तो वो सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं. y इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर a बाई ई ही लिखना होगा. y इज इक्वल टू, ये डिनो बिलो है ना, तो माइनस a बाई ई, और यहाँ पर y इज इक्वल टू a बाई ई. ठीक है, दिस इज द सेंटर. ऑल अदर formulas and theories are just like the type 1. okay, all formulas, formula and theory is of type 1. मतलब ये मैं पूरा वहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि व्हाट इज सी. सी मतलब क्या है, a बाई ई है, फिर वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वो टेक्स्ट बुक का जो ये वाला मेथड जो मैंने मतलब बोला था वो सब, ये पूरा जो पूरा पेज है ना, वो दोनों में एप्लीकेबल है. मतलब फर्स्ट टाइप में भी एप्लीकेबल है और सेकंड टाइप में भी एप्लीकेबल है. ठीक है, लेटस रेक्टम भी यहाँ पर सेम ही रहता है. लेटस रेक्टम लेंथ तो वो भी 2b² बाई
ए ही रहेगी. लेटस रेक्टम लेंथ इज ऑल्सो विल नॉट और चेंज. ठीक है, राइट. ये हमारी लेटस रेक्टम की लेंथ. ठीक है. तो होप यू आर क्लियर इन दिस डियर चिल्ड्रन. एंड tomorrow means next lecture we will go for the exercise 11.3 totally based on the this topic that is ellipse. आपको इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. यू विल फाइंड इट क्वाइट ईजी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.